सो हेलो बडीज, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम गौरव है। मैं आज आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज कैट बडी के प्लेटफॉर्म पर हम पाइथन वर्कशॉप्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बेसिकली कैट बडी इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी आर प्रोवाइडिंग लॉट्स ऑफ मल्टीपल वर्कशॉप्स। कोर्सेज भी देते हैं हम। सीबीएसई कोर्स बेस्ड कोर्स हो गया, क्रैश कोर्सेज भी देते हैं हम। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कैट बडी परफॉर्म करती है। पहले तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, ताकि अपडेट मतलब आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे कि कौन कौन से वर्कशॉप्स वगैरह दे रहे हैं। आज हमारा वर्कशॉप है पाइथन के ऊपर। आवर गेस्ट इज हियर, नितिन सर इज हियर। सर प्लीज आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। Hello viewers, I am Nitin this side. So before going to Python and Python programming language, let me introduce about myself. As the host told you that my name is Nitin, and basically I am core into this Python machine learning AI field. So previous to that, I am associated with a different corporates like Google, IBM, such type of companies. There I handled with different projects. So with this part, I'm going to teach you, or I'm going to elaborate on the topics of the Python programming. What kind of the uses that are available in the market? What are its application? What are the actual job requirement for this Python programming language? As you know, this Python programming language is very evolving these days. After 2018, this programming language is the number one programming language in the world. This programming language overcomes all the programming language like C, Java, C++, and many more programming language. And most of the companies have turned into this Python programming, and so you can just think of the demand is drastically increasing. So I wish and I urge everyone to learn this Python programming language, and it would be very beneficial. It would be very crucial for you to learn at this stage to make you and to make your skills according to the industry standards. So let us start with the basic thing like Python. So Python, this word is basically arises, or basically this word Python came from the Van Zusum, who was the founder of this programming language. He given this name just because of the circus scenario, or just because he went to circus and there he saw such type of like words, such type of buzzwords out there. So from there he started this word, और उसने फिर धीरे धीरे इसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पाइथन नाम दिया। तो बेसिकली ये जो आइडिया आया था पाइथन, ये एक सर्कस से आया था। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द हिस्टोरिकल पार्ट दैट व्हाट वर द वर्जन्स एंड ऑल। मैं आपको बताता हूँ कि हम डिस्कस करने वाले हैं जो पाइथन है, क्या उसने सर्कस के अंदर सांप देख लिया था तो उसको रख दिया था क्या? नहीं, उसने बहुत सारे सर्कस के अंदर अगर हम जाएं तो हम इवेंट्स देखते हैं। तो एक इवेंट का नाम था पाइथन, जिसमें उसको सबसे ज्यादा जिसने उसको एंजॉय किया। ही वाज द गूगल साइंटिस्ट। Later on, he developed this programming language and many more products of the Google, like Google Lens, like GPS system, and many more products of the Google are currently working on the Python programming language. And guys, एक चीज और सर ने अपने बारे में नहीं बताई है। सर ने गूगल लेंस के भी उनके पार्टनर थे। Yeah, I was one of the developer, and I was one of the establisher of this Google Lens product, which you will see, which you are currently using nowadays, जहाँ पे आप देखते हो इसके product के features, specifications, and बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो Google Lens में you just need to scan a product and you will get to know everything about that. तो ये सब चीजें आज के टाइम में बहुत easily available है. I just need to scan on anything and I will get the details of that product. तो गाइज ये सब चीजें जो हैं ये विद द हेल्प ऑफ पाइथन ही डेवलप हुई हैं। इनका अगर हम बैक एंड देखें, स्क्रिप्टिंग देखें, प्रोग्राम्स देखें, तो ये सबके पीछे अगर मैं बैक एंड बोलूं तो एक ही है, वो है पाइथन प्रोग्रामिंग। ऑलराइट, सो पाइथन इतनी फेमस क्यों हुई है? मतलब व्हाट वुड द रीजन? जब इतनी सारी एग्जिस्टिंग चीजें ऑलरेडी मार्केट में है, तो व्हाट मेक्स इट कि हमें पाइथन को इतना ज्यादा हाइप लेके आ गए कि बाकी सब चीजों को हम पीछे करने लग गए? Yes, the applications are machine learning, AI, data science. Such types of things can be deployed easily, implemented very easily with the help of the Python programming. Already we have R programming language, already we have Java, but nowadays everything has been ruled out just because of the fact. So sir, why वो Python किंग क्यों बना हुआ है सारे लैंग्वेज का? क्यों इजी प्रोग्रामिंग है, या फिर उसके लॉजिक्स इजी है, या फिर क्या चीज है?
देखो होता क्या है कि हम जब बोलते हैं कि उसने सब कुछ रूल आउट कर दिया या फिर पाइथन इज द किंग, तो इस कहने का मतलब ये है कि जो जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लूप होल्स थे या फॉल्ट्स थे, दे वर्क ऑन दैट। अब ये वर्क ऑन दैट ये कैसे हुआ? बिकॉज पाइथन इज अ ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसमें कोई भी कम्युनिटी के लोग जुड़ के आपस में एक लाइब्रेरी बना सकते हैं, मॉड्यूल बना सकते हैं, पैकेज बना सकते हैं। जैसे अगर मैं आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस लिए होती है? टू मेक इट डेटा विजुअलाइज, टू विजुअलाइज द डेटा वेरी इजीली, जहां पे हम चीजें बहुत इजीली समझ सकते हैं, जहां पे बहुत इजीली हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिपीटेबिलिटी फैक्टर, कि एक डेटा अगर 1000 टाइम्स है तो वो काउंट सिर्फ 1 ही करेगा। सो ये जो सेट्स है ये हमारा लाइब्रेरी फंक्शंस है पाइथन के ऊपर। दिस इज या फिर डेटा जो हम 11th क्लास में हम करते थे सेट थ्योरी, उससे रिलेटेड मिलता जुलता तो है या नहीं है? नो, दिस इज टोटली डिफरेंट। व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस है कि सेट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम यूनिकनेस डेटा की बात करते हैं, राइट? हम रिलेशंस नहीं कैलकुलेट कर सकते। फॉर एग्जांपल एज आई सेड कि हम डेटा टाइप के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप डाल सकते हैं। अगर मेरा एक फर्स्ट जीरो इंडेक्सिंग के अंदर 1 है और 1 इंडेक्सिंग के अंदर एबीसी लिखा है, तो आई कैन नॉट मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन 1 एंड एबीसी, राइट? Then moving ahead, we have another data type that is dictionary. अब ये डिक्शनरी क्या नई चीज है? डिक्शनरी कुछ नई चीज नहीं है, जो हम डे टू डे लाइफ में डिक्शनरी यूज करते हैं कुछ वैसे से रिलेटेड है। अब होता क्या है इसके अंदर? फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू सर्च फॉर द वर्ड वॉच, WATCH। आप करते क्या? W पे जाओगे और वहां पे W के आगे WA पे जाओगे, फिर WAT पे जाओगे, फिर C पे जाओगे एंड सो ऑन, यू विल गेट द रिजल्ट। अब डिक्शनरी इज Python is actually a key value pair. अब key value pair क्या होता है? Key means, for example, if I am taking an example in such a way, for example, watch, right? जो हम डिक्शनरी में सर्च कर रहे हैं, उसकी स्पेसिफिकेशंस, उससे रिलेटेड डेटा, वो सारा हमारा क्या बन जाएगा? वैल्यू पेयर्स। एंड उसका की क्या बन गई? जो उसकी स्पेसिफिकेशंस को डिनोट कर रहा है, वो क्या बन जाएगा? हमारा की। और की क्या है यहाँ पे? वॉच। तो सर जो लाइब्रेरी फाइल्स है जो आपने बताया है, लाइब्रेरी फाइल्स जैसे स्ट्रिंग्स हो गया या फिर ये डिक्शनरी हो गया, तो स्टार्टिंग में हम डायरेक्ट डिक्शनरी लिख देंगे या फिर उसका जैसे हम सी लैंग्वेज में यूज करते हैं ना, शार्प इंक्लूड colon.h stdio.h, तो ठीक उसी तरीके से इंक्लूड करते हैं ये सब चीजें। This is the flexibility in the Python which I am telling you कि you don't need to define anything. Just write dictionary, you are supposed to use everything about that dictionary. ठीक है, हमें कुछ पहले से डिफाइन नहीं करना है, इंपोर्ट नहीं करना है, हमें कुछ सिंटैक्स नहीं बनाना, कोई हेडर फाइल नहीं बनानी। यू कैन राइट एनीथिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप एंड यू आर गुड टू गो टू यूज। तो नेक्स्ट इज डिक्शनरी के अंदर, डिक्शनरी का डेटा फ्रेम से रिलेशन है जो कि हम पांडास में पढ़ते हैं। अब डिक्शनरी का डेटा फ्रेम से क्या रिलेशन बन सकता है? डिक्शनरी के अंदर जो डेटा आता है वो हमारा आता है डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट? और वही चीज हम डेटा फ्रेम के अंदर पढ़ते हैं कि डेटा हमारा एंटर होगा 2 डायमेंशनल में, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। तो दिस वर्ड डिक्शनरी इज, अगर मैं एक्सटेंड करता हूं तो मैं इसको यूज करता हूं पांडास के अंदर। लेटर ऑन आफ्टर दिस टॉपिक्स हम पढ़ते हैं फंक्शंस के बारे में। अब ये फंक्शन क्या नई चीज होती है? फंक्शन कोई नई चीज नहीं है, जो हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, ये सिर्फ वैसे ही रिलेटेड है, कुछ वही है ये। जहां पे आपको फंक्शन बनाना है, जहां पे आप, अभी सी में बात करता हूँ, इंट मेन, वॉइड मेन, ये क्या है? फंक्शंस बनाते हो आप, कि जहां पे इस फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ स्टोर है, जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट। तो और भी फंक्शंस क्या होते हैं सर कि जो लेंथी कोड को एकदम शॉर्टर करके यूज करते हैं, उसी को तो फंक्शंस हो गए, राइट? तो हम फंक्शन टैग यूज करते हैं जैसे फंक्शन। नो, पाइथन के अंदर DEF इज द कीवर्ड जो डिफाइन करता है, जो इनिशिएट करता है कि आपका फंक्शन है ये। DEF इज द कीवर्ड। फॉर एग्जांपल DEF नितिन, तो नितिन इज फंक्शन, जो फंक्शन का नाम है। देयर आई कैन परफॉर्म एनी टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी, whether related to arithmetic operations, whether related to numpy operations or anything. I can put any loop inside that function and जो मैं उसको यूज कर सकता हूँ। अब इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट आता है, दैट इज लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन nowadays in terms of the jobs 90% ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है, दैट व्हाट इज लैम्डा फंक्शन, व्हाट आर इट्स यूजेस,
If we have already function, then why should we have to work on this lambda function, right? तो डिफरेंस बहुत कम है, लेकिन बहुत बड़ा भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. देखते हैं क्या है. गाइस आप लोग नोट्स भी बना सकते हो, जो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो आगे जाके कहते हैं ना, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती, तो डेफिनेटली नोट्स भी बनाओ, उसको पढ़ो, जो जो सर बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें. यस सर, प्लीज कैन. होता क्या है कि लैम्डा फंक्शन इज व्हाट? लैम्डा फंक्शन इज एनोनिमस फंक्शन. एनोनिमस फंक्शन क्या होता है? मींस अभी तक मैंने आपको बोला कि DEF इज द कीवर्ड, जहां पे आप अपना नाम बना रहे हो. For example, DEF Nitin, I took an example just before. While you entering in the mall, and then and there only you can decide कि यार second basement floor में third pillar के पास ये वाला space vacant है, I can park my vehicle over there, right? So what it think कि this makes our life very easy. जो मेरे को 20 मिनट खराब होते हैं घूमता फिरता, फिर उसके बाद कहीं वहां पे आता, और जब तक शायद तब तक वो प्लेस भी चली जा सकती थी. तो इसका अगर मेरे पास प्रायर इंफॉर्मेशन हो तो आई कैन वर्क ऑन दैट. ठीक है, तो दिस इज अ प्रोजेक्ट विच यू कैन थिंक ऑफ. सच टाइप्स ऑफ थिंग्स आर इजीली क्रिएट, कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो आप लोग कर सकते हो. एंड सेकेंड एक और एग्जाम्पल लेता हूं. फॉर एग्जाम्पल, यू आर सिटिंग इन द क्लास एंड योर फैकल्टी केम इन द क्लास फॉर योर अटेंडेंस. तो क्या कर सकते हैं? विजुअल रिकॉग्नाइजेशन या फिर फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम बनाओ कि यू हैव द कैमरा इन द क्लास. विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू कैन क्रिएट अ सेटअप लाइक दिस कि वंस यू सी ऑन द कैमरा, योर कैमरा विल गोइंग टू रिकॉग्नाइज योर फेस जस्ट लाइक एनी कैमरा. तो वो उस कैमरे को जैसे ही आपने देखा और फेस कैप्चर कर लिया, इट विल गिव यू, द कैमरा विल प्रोवाइड द करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट यू. And ultimately a CSV file, CSV is what? Comma separated values files has been generated. और वो क्या कर सकते हैं? डाउनलोड करके एक अटेंडेंस सिस्टम बन सकता है. मींस अगर मैं 50 मिनट्स या 1 आवर की क्लास है तो आपकी क्लास के 10 to 15 मिनट्स सेव हो सकते हैं. So these all things can be possible and are developing right now. Applications, तो वहां पे आप पाइथन का यूज करके बहुत सी चीजें नई डेवलप कर सकते हैं. वैसे ये जो आपने एग्जांपल बताया पार्किंग का, ये मेरे को काफी अच्छा लगा. तो सोच रहा हूँ मैं अपनी टीम के साथ इस पे वर्क करूँ. Definitely you can work on that and you will see after some time कि आपका तो मजा आ जाएगा जब किसी भी मॉल में जाओगे और आपको पता लगेगा कि ऐसी चीज अवेलेबल है कि सेकंड बेसमेंट में इस स्पेस पे, इस पिलर पे मैं गाड़ी पार्क कर सकता हूँ. तो it would be ultimate. So guys, क्या बोलूं? So guys, अगर क्वेश्चंस वगैरह है आपको तो अभी भी पूछ सकते हो आप हम कमेंट बॉक्स पे. कुछ क्वेश्चंस आए हैं और आई होप इन सब के क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को मिल गए, जो कि मैंने ही पूछे, सेम रिलेटेड ही क्वेश्चंस है. सर एक क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाई पाइथन सो फेमस? एग्जैक्टली जो सर ने स्टार्टिंग में मैंने बता दिया क्या फेमस है. और सर इस डिक्शनरी इज अ लाइब्रेरी. यस, इट इज अ लाइब्रेरी फंक्शन जो हम पाइथन में यूज करते हैं स्टार्टिंग. no, it is a data type in the Python. डेटा टाइप इन द पाइथन. ओके. और सेकंड आदित्य सिंह का क्वेश्चन है, व्हाई पाइथन वाज फेमस? सेम क्वेश्चंस रिपीट हुआ. और व्हाट इज द स्कोप इन पाइथन? एज ऑलरेडी सर हैज टोल्ड यू कि स्कोप्स क्या है, पैकेज तक का. और लाइक नहीं किया तो लाइक भी करो. सो सी यू सून गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू सो मच. Okay. Thank you sir, and thank you so much Nitin sir for giving your precious time to us and बताने के लिए कि पाइथन क्या होता है, क्या क्या स्कोप्स है, क्या ये चीजें हैं. एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने सोचा था यार मैं जावा पकड़ूंगा, लेकिन आपने जब पाइथन के ऊपर बनाया तो मैंने स्विच कर लिया अपना माइंड कि यार नहीं, पाइथन पे करेंगे, एकदम 20-25 लाख का पैकेज लेके जाएंगे जरूर. और वो आइडिया के ऊपर आपने बताया पार्किंग का, वो जरूर मैं इम्प्लीमेंट करूंगा जरूर. ओके, थैंक यू सो मच सर. बाय बाय गाइस, टेक केयर.